book. So this is the introduction. So far we have discussed about the velocity, acceleration, etc. Actually we have discussed in motion in a straight line and motion in a plane. We have discussed a lot about the velocity, acceleration, distance, displacement. हमने इनके बारे में बहुत पढ़ लिया, बट हमने एक बार भी इसके बारे में नहीं पढ़ा कि why velocity is having, why a body is accelerating, why the distance of a body is changing, what is the reason behind that. So in this chapter, in laws of motion, we will discuss about the cause of motion. So we can write, we will discuss about the cause of motion. कि motion हुआ किस वजह से है, what is the reason behind the body, why it is moving from rest to have some velocity. So far we have described the motion of a particle in space quantitatively. This is the language given in your NCERT. This is the first line. Quantitatively we have described a motion in space. अभी तक हमने क्वालिटी की बात नहीं करी, क्वांटिटी में करी है कि एक पार्टिकल है स्पेस में, उसकी वेलोसिटी इतनी है, या यू हैव टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल क्वालिटेटिवली एज वेल. यूनिफॉर्म मोशन, इफ यू हैव द वेलोसिटी इट इज ओके, because for uniform motion you have acceleration equals to 0. For non-uniform motion you have to require acceleration. So these things we have already discussed in our previous chapters. Next, but so far we have not asked the question about what governs the motion of a object or body. इसका मतलब यही है कि so far we have not discussed about the cause of motion, कि motion हुआ कैसे. For example, to move a football from rest, एक फुटबॉल रखी है, you have just kicked that football and it will start moving. So initially वो रेस्ट में थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने उसमें किक मारी है, वी हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन दी फुटबॉल, दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स मूविंग. नेक्स्ट एग्जांपल में थ्रो अ स्टोन अपवर्ड. सो जब हम एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट मींस यू आर प्रोवाइडिंग अ पुश फ्रॉम योर हैंड टू दी स्टोन. विंड कॉजेज द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू स्विंग. द लीव्स एंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री स्विंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन देम. जो एयर उनके ऊपर फोर्स लगाती है, दैट्स व्हाई वो स्टार्ट कर देती है स्विंग होना. इन तीनों एग्जांपल में यू हैव वन कॉमन थिंग इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. आपका पैर फुटबॉल पे है, स्टोन आपके हाथ में टच है, हवा पत्तों से टच में है. सो देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट व्हाइल ट्रांसफरिंग द फोर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. बट इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट द टू बॉडीज आर ऑलवेज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. एक बॉडी आपकी यहां रखी है, एक यहां पर रखी है. सपोज दिस इज अ वन मैग्नेट एंड दिस इज अनदर मैग्नेट. इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. यहां पर तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है बॉडी का, बट स्टिल देयर इज अ फोर्स. सिमिलरली फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, आपकी ग्रेविटी कैसे लग रही है? सपोज दिस इज योर अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. सो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. So in short, we can say a force is required to put a stationary body in motion and stop a moving body. And external agency may or may not be in contact to each other, as we have already discussed about the gravitational and magnetic forces, which are not in direct contact with the body. But what if a body is moving uniformly? Suppose a skater moving straight with constant speed on a horizontal ice slab. So now we have to find out, we have to think about, is an external force required to keep a body in uniform motion? So we have to answer such questions in this, and the answer of this question given by Galileo in the 17th century, and he laid the foundation of Newtonian mechanics, which signaled the birth of modern science. देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है, but it took ages to answer it. So the correct answer was given by the Galileo in 17th century, और इस आंसर के बाद न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जन्म हुआ, you can say. So next is Aristotle's fallacy. He was a Greek thinker, or you can say Greek scientist. बहुत पहले, न्यूटन और वगैरह से भी बहुत पहले के साइंटिस्ट ही रह चुके हैं. यू कैन सी 384 BC to 322 BC बिफोर क्राइस्ट. सो एज पर हिम एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन. सो एरिस्टोटल के हिसाब से आपको कंटिन्यूअसली एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड रहता है अगर बॉडी को आपको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो. इसका एग्जाम्पल है कि ये टॉय कार, सपोज करिए एक बच्चा इसको खींच रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो कंटिन्यूअसली एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो एज पर एरिस्टोटल उस बच्चे को कंटिन्यूअसली एक फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा अगर उस बॉडी को मोशन में रखना है. जैसे ही बच्चा उसको थ्रेड को छोड़ेगा तो वो जो व्हीकल है आपका, जो टॉय कार है, वो इट विल कम टू रेस्ट. बट जो कि एक बाद में जाके गैलीलियो ने एक गलत प्रूफ दिया कि दिस इज नॉट द रीजन व्हाई बॉडी इज इन नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन. सो एक फ्रिक्शनल फोर्स केम इनटू द पिक्चर. द रीजन बिहाइंड टू स्टॉप द कार व्हाइल द बॉय इज नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज फ्रिक्शनल फोर्स. Now come to the law of inertia. Actually, Galileo studied motion of object on an inclined plane.
There are three type of planes you can see here. First is moving down, or you can say the accelerating plane. यहां पर क्या है, एक्सेलरेट कर रहे हैं. मूविंग अप मीन्स डिसिलरेशन या रिटार्डेशन. You can say retardation, and it's a horizontal plane, or you can say it's an intermediate condition in between these two. Neither retardation nor acceleration. This is so you can say this ball will move with constant velocity. ये जो ball है, it will move constant velocity. So this is what Galileo did in his first attempt. He did another experiment by Galileo leading to the same conclusion, involves a double inclined plane. उस सेम कंक्लूजन उसने निकाला कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई रिटार्डेशन कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, बट इस बार उसने डबल इंक्लाइन प्लेन लिया. वो कैसा लिया उसने, वो देख लेते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट गैलीलियो डिड इन हिज सेकंड अटेम्प्ट और इन सेकंड एक्सपेरिमेंट व्हिच इज नोन एज डबल इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट. सो यू कैन सी इन फर्स्ट फिगर द स्लोप एट दिस एंड एंड स्लोप एट दिस एंड बोथ आर सेम. So you can say h1 and h2 height both are same, and in this experiment he has assumed that there is no friction. So अब आप यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करेंगे from this height, so you will observe that the ball will reach at the another end with same height. There is no friction. अगर दोनों प्लेनों का फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन का स्लोप सेम है तो बॉल की हाइट विल ऑल्सो बी सेम. यहाँ से आप जैसी बॉल ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर सेम हाइट पे वो पहुंच जाएगी. देन उसने इसमें प्लेन में क्या चेंज किया, इसकी सेकंड प्लेन की स्लोप डिक्रीज कर दी. ही हैज रिड्यूस्ड द स्लोप ऑफ सेकंड प्लेन रिड्यूस्ड बाय सम रेशो. सो यहां से अगेन बॉल ड्रॉप की. देन अगेन ऑब्जर्व किया द हाइट रीच्ड बाय द बॉल टुवर्ड्स द सेकंड प्लेन इज सेम एज फर्स्ट प्लेन हाइट, बट वी हैव रिटन रीच्ड सेम हाइट बट ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस. इस बार बॉल ने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो ज्यादा किया. फिर उसने अपने थर्ड अटेम्प्ट में इसको जीरो कर दिया, सेकंड प्लेन को स्लोप को जीरो कर दिया, और यू कैन से इट्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड देन अगेन रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉल ड्रॉप. यहां से उसने फिर बॉल को ड्रॉप किया एंड एक कंक्लूजन निकाला, द सेकंड प्लेन स्लोप जीरो, द बॉल ट्रेवल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस. ये बॉल अब रुकने नहीं वाली है. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड द सरफेस ऑफ द फ्लोर, it will never stop, its motion will never ceases. But we all know it's a idealized situation. So Galileo ने यहां पर एक हाइपोथेसिस बनाई about the motion of the body with respect to frictional force. Let us see. यहां पर एक assumption था because the friction force is zero, but in real practice, in actual practice, the ball does come to a stop after moving a finite distance because फ्रिक्शन थोड़ा बहुत तो हो गई. अब टोटली यू कैन नॉट एलिमिनेट फ्रिक्शन टोटली, देयर विल बी सम फ्रिक्शन. हाउएवर इफ, फिर क्या कहता गैलीलियो, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल आप जीरो कर देंगे, द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है. कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल मूव करती रहेगी इफ देयर विल बी ए नो फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन. ऑल्दो इट्स अ इमेजिनरी टर्म, बट वी हैव टू थिंक अबाउट इन दिस फैशन. सो गैलीलियो एक कंक्लूजन पे पहुंचा, वो क्या है, सिमिलरली इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड एट सर्टेन पॉइंट, सपोज एक बॉडी को आपने रखा है, इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टिल देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो विच मीन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन बोथ आर सेम. सो इट इज इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट ए नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. दिस इज बॉल और ये इस सरफेस पे रखी है. आप यहां से इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इसको मोशन के लिए. इसका ये मतलब नहीं है दिस बॉल इज रिक्वायर्ड सम फोर्स टू कीप इन मोशन. आप ये फोर्स लगा रहे हैं इस फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए, विच मीन्स जितना इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना ही फोर्स आप यहां पर लगाएंगे, देन ये बॉडी स्टार्ट मूविंग करेगी. देन नेट फोर्स इसका और इसका आप सम करेंगे, देन इट विल बी ए जीरो. So to maintain a body in uniform motion, we need to apply an external force to counter the frictional force, so that the two force sum will be zero. So this is the idea behind this concept. Later on, this idea is used by the Newton to develop his first law of Newton. इससे पहले कौन सा लॉ हमारा बन गया था? The inertia law, which is given by the Galileo. So next is inertia. In order to summarize the whole thing, we can say if the net external force is zero, a body at rest continue to remain at rest. If a body is in motion, it will continue to move uniform motion. So this point we need to remember, this is uniform motion, not only the motion. It's a uniform velocity motion and this is the state of rest. So कहने का मतलब ये है, if this is your body, ये यहाँ पर रखी है किसी
टेबल पे रखी है सपोज करिए, सो दिस इज द रेस्ट पोजीशन है, तो विच मीन्स इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो ये रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी। नेट एक्सटर्नल फोर्स हम आगे पढ़ेंगे कैसे, हाउ यू रिजोल्व द फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। अभी सिंपल आपको बताता हूँ, इसका नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन स्टैटिक पोजीशन। इसका क्या है, आपने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मोशन स्टैटिक है, सो विच मीन्स बोथ द फोर्स आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, सो नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। अब मोशन का क्या है, मोशन है तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर इनिशियल v है तो यहाँ पर भी v है, एक्सेलरेशन तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो, ठीक है। अगर आपको इस बॉडी को जो रेस्ट में है उसको मूव करना है आगे फॉरवर्ड, तो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स इन ऑर्डर टू, ये जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच का उसको कैंसिल करने के लिए, और जितना यहाँ पर फ्रिक्शन है उतना ही आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, विच मीन्स दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर। प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया क्या है, चेंज नहीं होता उसकी पोजीशन को, उसका रेजिस्ट करता है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन को स्टॉप करना चाहेंगे तो आपको एक फोर्स लगाना होगा, तो उस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका नॉन जीरो हो जाएगा। तो जो वो फोर्स लग रहा है दिस इज अगेंस्ट दी इनर्शिया, तो इनर्शिया उसका अपोज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो बॉडी रेस्ट में है, अब इसके ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हैं मूव करने के लिए, तो इनर्शिया जो इसका मास है वो उसका अपोज करेगा, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय द गैलीलियो। नाउ कम टू दी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आया कैसे, कहाँ से आया, लेट्स डिस्कस फर्स्ट। हमने एरिस्टोटल पढ़ा था, एरिस्टोटल हैज कंक्लूडेड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, बट सेम थिंग गैलीलियो ने एक दूसरे एंगल से देखा, ही सेड देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स, so in order to get a uniform motion the net external force should be equals to zero. If this is the condition as we have mentioned here as well, a body at rest continue to remain at rest, अगर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी इफ एंड ओनली इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। सो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया, गैलीलियो से। नाउ दिस इनर्शिया कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज्ड बाय द न्यूटन, यूज गैलीलियो कॉन्सेप्ट एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ थ्री लॉज। जो आपके न्यूटन के थ्री लॉ है उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस कहां से तैयार किया गया, फ्रॉम द गैलीलियो, एंड गैलीलियो हैज यूज और रीथिंक द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द एरिस्टोटल। सो न्यूटन फॉर्मुलेटेड दिस इनर्शिया लॉ एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें उसने क्या बोला, सो नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाउ वी कैन एक्सप्रेस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल्दो इट इज लेड फाउंडेशन ऑन द गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। सो लेट अस सी, if the net external force is zero, first of all we have to understand what is net external force. Equals to zero doesn't mean that there is no force on the body, because few forces like gravitational force is always there. You cannot say that gravity is not acting. So यहाँ पर इस सिचुएशन की बात की गई है कि जितने भी फोर्सेज हैं बॉडी के ऊपर they are cancel out each other so that your F net equals to zero. F net external net doesn't mean that there is no force on the body. Suppose this force is some pressure P and it is cancelled out by another pressure P in the opposite direction. Similarly, some force is acting at the downward direction and some force on the upward direction. F. So sum of all the forces equals to zero. This means F net equals to zero. So in that situation, your acceleration will be zero. उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो मीन्स ईदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है, there is a possibility to have acceleration non-zero, but your F net must be equals to should not be equals to zero. It has some value. इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। So in actual practice, when your body, suppose this is the book which is placed on the table, एक टेबल पे एक बुक रखी है, तो इसमें आपका body is at rest, your book is at rest. This is the motion you have already defined or you have already observed that book is at rest. So its net external force is equals to zero. Net external force क्या होगा इसमें, बॉडी का वेट जो नीचे की तरफ आ रहा होगा mg और एक इसका अपवर्ड रिएक्शन होगा w. सो mg इज बैलेंस्ड बाय दी w, जो w होगा जो टेबल इस बुक के ऊपर जो लोड लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी, और वो कितना लगाएगी, जितना इसका वेट होगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगी चीज। सो इस केस को मैं बोल रहा हूँ बॉडी एट रेस्ट और F नेट इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर आपका फर्स्ट लॉ लग गया। सिमिलरली अगर मैं एक कार मूव कर रही है, एक स्पीड से वो मूव कर रही है और मैं उस स्पीड को बोल रहा हूँ कि इट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, v की वैल्यू मैंने कहा कि 20 मीटर पर सेकेंड है, सो इन दैट केस योर एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। थोड़ा सा सोचने में पेचीदा है, बट एज पर फिजिक्स नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हील तो घूम रहे और रोड और व्हील के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, बट दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज काउंटर्ड बाय द इंटरनल फोर्स और द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इंजन। जो आप इंजन से अपनी गाड़ी को चला रहे हैं वो किसको काउंटर कर रहा है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स को।
सो दैट्स वाई योर एफ नेट इक्वल टू 0। एफ नेट अगर 0 होगा तभी ये v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड पे चलेगा। अदरवाइज एफ नेट अगर 0 नहीं होगा, सपोज करिए एकदम से आपका ब्रेकर आता है तो आप ब्रेक मारते हैं तो ये 20 इज रिड्यूस टू सम वैल्यू, सपोज 5 मीटर पर सेकंड हो गया। सो 20 to 5 में आपका 15 मीटर पर सेकंड का चेंज आया और कितने टाइम के साथ आया, देन इट विल गिव यू द एक्सीलरेशन। सो योर नेट फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू 0 इन दैट सिचुएशन। अभी कार खड़ी है खाली, यू कैन से इट्स एफ नेट इक्वल टू 0 स्टैटिक पोजीशन में। जितना इसका वेट यहां पर आ रहा है उसी का ही नॉर्मल रिएक्शन यहां पर जा रहा है। सिमिलरली यहां पे जो आ रहा है इसका नॉर्मल रिएक्शन यहां पर जा रहा है। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, तो यहां पर जो इनके बीच में फ्रिक्शन है इसको काउंटर करने के लिए बॉडी एक फोर्स लगाएगी, कार एक फोर्स लगाएगी। तो नेट एक्सटर्नल यहां पर क्या हो जाएगा आपका नॉन जीरो। तो आपको एक झटका लगता है गाड़ी के अंदर, बिकॉज नेट एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यू हैव द एक्सीलरेशन हियर नाउ, जो हमने लिखा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो कि हमें याद रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्स आर नॉट क्वाइट नॉन फुल्ली बट द स्टेट ऑफ मोशन इज नॉन। अभी ये बॉडी यहाँ पर रखी है, आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि योर बुक इज एट रेस्ट। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस वेट ऑफ द बुक इज काउंटर्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। पहले आपने ऑब्जर्व क्या किया? बुक इज एट रेस्ट, आपको तो नहीं फोर्सेस पता थे इसके ऊपर। सो बुक इज एट रेस्ट, देन आपने ये फिजिक्स यहाँ पर लगाई। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो द मोशन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई वी हैव स्टडीड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जिसमें आप u, v, w, x और एक्सीलरेशन की बात करते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। ऑल दीज आर दी एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स, और यू कैन से यू कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स बट यू कैन नॉट विजुलाइज दी हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टडीड दिस, और इनसे हम फोर्स का पता लगा लेते हैं, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। F इक्वल टू ma, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो यहां पर जब आएगा देन यू कैन रियलाइज व्हाई यू हैव स्टडीड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट। सो दिस इज द पॉइंट। और इन एक्चुअल प्रैक्टिस भी यही होता है कि आपको मोशन पता होता है, स्टेट ऑफ मोशन यू नो। अब अगर मैं फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करूं, फ्लूइड डायनेमिक्स में आपको फ्लो, कई बार आप विजुलाइज करते हैं कि एयर का पार्टिकल मूव कर रहा है, फ्लूइड का पार्टिकल मूव कर रहा है, देन यू रियलाइज दैट हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी बॉडी बाय अप्लाइंग सम फॉर्मूला, बर्नौली इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ एंड ऑल दैट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट ऑफ मोशन इज नॉन। हमें यहाँ स्टेट ऑफ मोशन पता थी कि ये रेस्ट में है, दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट दिस इज mg इज बैलेंस्ड बाय द w। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।